Shravani Mane from FY. Myself Shravani Mane from SYPLS LLB. Today we are gathered. Today, we are gathered here to celebrate Constitution Day, which is also called as Law Day or Samvidhan Divas. Samvidhan Divas is celebrated in our country every year on 26 November to commemorate the adoption of the Constitution of India. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect from 26 January 1950. Our Constitution lays down the framework that demarcates the fundamental political code, structures, procedures, powers and duties of the government institutions and sets out the fundamental rights, directive principles and duties of the citizens. It is the longest written constitution in the world. Now, before proceeding, I would like to request you all to stand up for the national anthem. Now, I would like to request our dignitaries to light up the lamps and pay respect to the chairman of the drafting committee, Dr. Babasaheb Ambedkar, and the inspirations of Janardhan Bhagat Shikshan Prasarak Samstha. Thank you, dignitaries, and please take your seats.
Mr. Vikramaditya sir. Thank you, Shami. Good morning, everyone present here. Today, we have with us Mr. Vikramaditya sir, Assistant Professor and Coordinator, Human Rights Program, Department of Law at Savitribai Phule Pune University. He has completed BSc Honours, LLB, LLM and qualified UGC NET JRF. Sir is currently pursuing PhD from Department of Law, Savitribai Phule Pune University. Sir is working as Assistant Professor at Department of Law, Savitribai Phule Pune University since 2019. Sir has taught several subjects like Law and Justice in Globalized World, Administration Law, Constitutional Governance, Constitutional Law. Sir mentored 45 students of LLM in their thesis specializing in Constitutional and Administrative Law, Criminal Law, Business Law, Science and Technology. Sir is coordinator of Human Rights Department Introduction of Constitutional Program, LLM Entrance Exam, PhD Entrance Test, Student Induction and Orientation Program, and is assisting in preparing internal quality assurance and reports and academic and administrative audit reports. Sir has worked as an assistant professor at New Law College, Bharati Vidyapith in 2016-17. Sir has also worked as a guest faculty in the Interdisciplinary School of Science Savitribai Phule Pune University in 2019-20. Sir was guest speaker at a workshop organized by Eklavya Academy Yavatmal, Maharashtra and Guru Nanak Higher Secondary School, Madhya Pradesh. Sir has represented India and participated in the 3rd BRICS and SCO Student Spring Festival, Stavropol, Russia. Sir has participated in Teachers Congress organized by Western India Regional Council, Faculty Development Program for Digital Pedagogy, National Workshop on Research Methodology, Research for Resurgence, Expanding Horizons of Air and Space Law, Pathways of Right-Based Advocacy in India. Sir has contributed as a resource person on the topic probing Bhartiyata in Indian Constitution and Jurisprudence and is contributing as a resource person on the topic Bharat Prudence, Guru Norm of all legal philosophy. Sir has contributed in series of lectures under the Introduction of Constitution, Human Rights Training Program, Research Methodology of Domestic and International Law Perspective, a seminar of law and justice in globalizing world of multidimensional perspective. Sir has delivered lectures as a resource person on topics human rights and Supreme Court, human rights of women in various personal laws, Bharatiya Sahayata or Shiksha, Rashtriya Shiksha Niti, Culture and Constitution, India versus Bharat in Constitutional Framework. Sir has delivered a lecture at GLC on Federal Conscience of Constitution of India. Sir has been awarded with a Certificate of Merit for Excellence in ECAC Organizing Committee, Certificate for Participation in the First Constitutional Olympiad, awarded Certificate of Active Participation and Excellence by MIT Pune for speaker at 6th Bharatiya Chhatra Sansad. So it is really an honor to have you here. Your presence will make the day memorable. Thank you, Chaitrani. Now, I would like to request our Honorable In Charge Principal, Ms. Tanushree Ma'am, to come on stage to felicitate our special guest, Mr. Vikramaditya sir. Thank you, ma'am. Now I would like to request our In Charge Principal ma'am to deliver welcome address. Good morning one and all present over here. Happy Indian Constitution Day. Janardhan Bhagat Shikshan Prasad Sanstha, Bahubai Ambedkar College of Law celebrating today the Constitution Day of India. I, In Charge Principal Dhanashree Yogesh Kadam, welcomes you on this auspicious day. It is my pleasure to welcome today's chief guest, Honorable Mr. Vikramaditya sir, Assistant Professor, Department of Law, Savitribai Phule University, a very young and dynamic personality. Thank you, sir, for accepting our invitation. I welcome respected teaching and non-teaching staff of our college. I welcome my beloved students of various LLB, and LLM course, committee, students coordinator, class representatives, and volunteers. On the occasion of Constitution Day of India, our chief guest, Honorable Vikramaditya sir, will deliver a lecture on the Constituent Assembly of India
ideological mooring and methodology. I'm sure you all will feel enriched with the knowledge after the completion of your debate. Always remember that though to follow the constitution, always who love the nation always follow the constitution. I would like to say a few words about the constitution. हर जीवन के जीवन शक्ति और समृद्धि का विधान, द्वंद्व रहित सर्वहितकारी हमारा संविधान, सबके समृद्धि का एक सोपान हमारा अपना संविधान, हर जीवन का एक आधार हमारा संविधान, सबके हित का एक विधान हमारा संविधान. Once again, happy Constitution Day to all and thank you. Thank you, ma'am. Now I would like to call Avantika to read the preamble. Good morning, everyone. Myself, Avantika Gowad, a student of second year BLS LLB. Now I request everyone to stand and repeat the preamble after me. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to its all citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. Thank you, everyone. I request you all to seat. Thank you, Avantika. Now, I would like to request our in charge principal ma'am and Sanupriya ma'am to take their seats. Now, we will proceed with today's special lecture on the Constituent Assembly of India, ideological moorings and methodologies. Without further ado, I would like to request our chief guest to express his views. Am I audible properly? No? Now I am audible? Yes, sir. Actually ये माइक मुझे अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा था, बट इस माइक को पता नहीं है कि वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. So, first of all, I want to be very much thankful to this college, principal ma'am, Sanupriya ma'am, and other faculties and the administrations and the management who has given me the opportunity to discuss with you on this specific topic. As today we are celebrating the Constitution, first of all, we must know ये ट्रेडिशन कब से स्टार्ट. एक्चुअली 26 नवंबर को हम जो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, 2015 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है डॉक्टर अंबेडकर की जो एक स्टैचू है दिल्ली में, इसको समानता का बुद्ध बोला जाता है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी. उस साल हम in 2015 actually we were celebrating 125th birth anniversary of Dr. Ambedkar. उस समय की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस साल से हम लोग
कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाना शुरू करेंगे. सो वी हैव स्टार्टेड टू सेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन डे फ्रॉम द डेट ऑफ 26 नवंबर 2015. उससे पहले दिन 5 साल ही हुए अभी हमें सेलिब्रेट. We have a constitution since 70 years, but we have started the celebration from 2015 onwards. तो ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 1-2 साल पहले तक मुझे भी नहीं पता. मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 1950 से सेलिब्रेट हो रहा है, but 2015 onwards we are celebrating this. I will come to my topic, but before that, I just want to share some interesting facts about the copy of the Constitution. आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से एकदम कलर्ड, बहुत अच्छे कैलीग्राफी में लिखा हुआ देखा होगा ना. एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और ये डेट फिक्स हो चुकी थी कि ऑलमोस्ट ऑन 26 नवंबर 1949 हम लोग कमेंसमेंट स्टार्ट कर देंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन का काम. मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे. उससे कुछ महीनों पहले तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी. उस समय प्रिंटिंग प्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं था. जो भी था थोड़ा बहुत टाइप किया हुआ था. नेहरू जी को लगा कि ऐसे टाइप किया हुआ अगर कॉन्स्टिट्यूशन सामने रखा तो लोग कहेंगे यार क्या ये चीज. तब उन्होंने एक कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण राय, उनको बुलाया और उन्होंने बोला कि ये बन कॉन्स्टिट्यूशन का और आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े ही सुंदर तरीके से ब्यूटीफुली यू हैव टू डिजाइन इट. जो आज दिखता है ना आपको बड़ा सा एक बुक में एकदम कैलीग्राफिक स्टाइल. और नेहरू जी ने बोला कि प्रेम जी आपको ये काम करना है, कितना चार्ज लोगे. प्रेम बिहारी ने बोला कि सर 4 लाख तो नहीं लूंगा, बड़ी रिक्वेस्ट है. आई विल डू द सेम. मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से कैलीग्राफिक फॉर्मेट में बनूंगा, बट आई जस्ट नीड वन थिंग. हर पेज के नीचे छोटा सा मेरा एक साइन होगा और सबसे लास्ट पेज पे मेरे दादाजी का नाम होगा. बिकॉज इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू विद द कैलीग्राफिक वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राई टू सी नीचे छोटे से वर्ड में एक सिग्नेचर है प्रेम बिहारी नारायण राय दादा. हर पेज अपॉर्चुनिटी मिली, उसको बहुत अच्छा यूज किया उन्होंने. और सबसे लास्ट पेज पे उनके दादाजी का नाम. ध्यान से देखिएगा आपको कभी मौका मिले. अब जब वो मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार हुई, उसी मैन्यूस्क्रिप्ट पे 26 नवंबर 1949 को हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर हैं, उन्होंने साइन किया. सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सबसे लास्ट में फिरोज गांधी, उनके साइन. ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और वो कॉपी भेजी गई देहरादून में इंडियन सर्वे ऑफिस, वहां पे अच्छे तरीके से रखा गया. प्रेम बिहारी नारायण राय दादा को ऑलमोस्ट 6 महीने लगे थे इस कॉपी को कैलीग्राफिक करने में, एंड ही हैज यूज्ड 251 स्पेशल पेजेस फॉर दैट. वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉपी जिन पेजेस पे लिखी गई है, उन पेजेस को अगले 1000 साल तक कुछ नहीं होगा. कोई अगर चाहे भी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दे तो इट्स नॉट पॉसिबल. एटलीस्ट डॉक्यूमेंट वाइज इट इज देयर. एंड देन दैट कॉपी वाज सेंट टू द देहरादून. और फिर बाद में 1956 नेहरू जी को ये लगा कि यार ये जो कॉपी है सिर्फ वहां ही रख दी हमने. कॉन्स्टिट्यूशन है, वी द पीपल बेस इस कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इट शुड बी स्प्रेड टू द ईच कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री. इसके लिए लेकिन इसको स्प्रेड करने से पहले उन्होंने बोला कि काम किया जाए, इसको थोड़ा और कलरफुल किया. और कलरफुल कैसे किया जाए? शांति निकेतन में एक ड्राइंग करने वाले बड़ा फेमस नाम था नंदलाल बोस, उनसे कांटेक्ट किया गया. नंदलाल बोस से बोला गया कि 251 पेजेस है जिसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको बड़ा कलरफुल और अच्छे से करना, आपको क्या करेंगे? उन्होंने बोला कि 251 पेजेस पे तो करना पॉसिबल नहीं है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है. मैं हर पार्ट की स्टार्टिंग में एक पेंटिंग करूंगा. पेंटिंग का बेस क्या था कि जो इंडिया का जो इवोल्यूशन हुआ है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, देन वैदिक सिविलाइजेशन,
उसमें रामायण भी, महाभारत भी, राम भी, कृष्ण भी, बुद्ध भी, महावीर भी, गुरु गोविंद सिंह भी, शिवाजी महाराज भी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, ऑलमोस्ट इन सारे लोगों को डिपिक्ट किया गया, एवरी पार्ट, हर पार्ट किया गया। जैसे जो राम लंका से वापस आए थे पुष्पक विमान से, उस ड्राइंग को फंडामेंटल राइट के आगे डिपिक्ट कर रखा है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको ड्राइंग फॉर्म में 22 पेजेस में डिपिक्ट कर रखा है। अगर आपको कभी मौका मिले तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी देखिएगा, आपको वहां सारी चीजें, हिंदुस्तान को बहुत बड़ा, उसके पीछे भी लॉजिक लगा है। जैसे डीपीएसपी के आगे जो एक ड्राइंग लगाई गई, उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, आप सब लोगों को पता है गीता क्या है? गीता एक नीति शास्त्र है, बताया जाता है इट्स अ नीति शास्त्र, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? वो भी एक नीति शास्त्र है कि कैसे पॉलिसी बनानी। जैसे अगर आप देखेंगे राम जो वहां से लौट के आए, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के आगे उनका पिक्चर है। क्यों? क्योंकि राम आजीवन, ऐसा एक फिलॉसफी है कि राम आजीवन अपने आसपास के लोगों के राइट्स के लिए ही संघर्ष करते रहे। दैट्स व्हाई वो पिक्चर वहां, इसका लॉजिक है, सबके पीछे का लॉजिक ऐसे ही नहीं डाले गए, लॉजिक बिहाइंड है। और बाद में ये सारी कॉपीज पूरी कंट्री में ऑलमोस्ट 32 जो स्टेट्स है, 32 सिटीज है, वहां पे ये कॉपी भेजी गई। आप लोगों को अगर हमारे महाराष्ट्र में भी है, मुंबई में शायद आई थिंक वहां पे भी रखी हुई है, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो इसको जरूर देखिए। ये मैं एक बेसिक डॉक्यूमेंट, एक बेसिक बात बता रहा था कि इसके बारे में हमें थोड़ा सा एटलीस्ट पता होना चाहिए कि दिखता कैसा है। हम कितना पढ़ रहे हैं वो बात की बात, हम कितना समझ पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ये अलग चीज है, बट एटलीस्ट दिखता कैसे ये तो हमें पता हो। कल को कोई बाहर वाला आके पूछ ले कि भाई कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन, कितने पेजेस है, कितने पार्ट्स है, वहां पे क्या है, क्या यूनिक चीज है, तो ये तो हम बता सकें। जैसे मुझे कल ही पता चला, हमारे डिपार्टमेंट में हमारे एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी चीज बताई कि जापान के प्रियम्बल में एक चीज लिखी हुई है कि जापान इज अ पीस लविंग कंट्री। वो चाहता है कि हर जगह पीस बनी रहे, और वो इतना फॉलो करते उस चीज को कि फुटबॉल स्टेडियम का मैच खत्म होने के बाद भी वो उस जगह का एनवायरनमेंट को पीसफुल बनाने के लिए वहां का कचरा उठा। आप लोगों ने देखा होगा अभी रिसेंटली फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, दैट इंस्पिरेशन टुक फ्रॉम देयर प्रियम्बल। तो जिस तरह जापान इंस्पिरेशन ले रहा है उस तरह हमें भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए, लेकिन इंस्पिरेशन लेने से पहले पता तो हो कि है क्या। इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज शेयर। नाउ आई एम कमिंग टू माय टॉपिक दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज एन आइडियोलॉजिकल मूविंग्स एंड मेथोडोलॉजीज। टॉपिक बड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट रिटोरिकल वर्ड्स, पर जो कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने, हम अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, जनरली इवन इन आवर लीगल एजुकेशन, अनफॉर्चुनेटली वी नेवर डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अनफॉर्चुनेटली। My point is that it must be added in a law colleges, it must be added in the course of LLM colleges, it should be there. But unfortunately, we never ever go through with the methodologies, we never ever go through with the content which was used by the Constituent Assembly. ये थोड़ा सा अजीब चीज है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक है। मैं समझता रहा था कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में नहीं पता, किस तरह की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप देखिए, अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम लोग बात करें, उसको मैं एक रिवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट, वो जो असेंबली है दैट वाज एन रिवोल्यूशनरी असेंबली। वो जैसा श्रीमद् भगवद गीता में बोलते हैं ना कि हाईएस्ट पीक ऑफ द पर्सन का हाईएस्ट पीक होता है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मीन्स कैसी भी सिचुएशन हो आप हमेशा स्टेबल, और अगर आप स्टेबल हो तो यू कैन गिव अ बैकग्राउंड
आपके आसपास अगर नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, डजंट मैटर, आप अपने काम पे लगे हुए हो, इट मीन्स यू आर स्थित प्रज्ञ, यानी आपकी जो प्रज्ञा यानी जो बुद्धि है वो स्थित है, और स्थित बुद्धि में आदमी अच्छा काम कर सकता है। ज्यादा खुशी में भी अच्छा काम नहीं होता, ज्यादा गम में भी अच्छा काम नहीं होता, नॉर्मल टाइम में अच्छा काम। तो इसीलिए पढ़ाई भी नॉर्मल टाइम में करनी चाहिए। ज्यादा एग्जाम पास में है उस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। नॉर्मल डेज में भी कंटिन्यू स्टडी होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हर मेंबर अपने आप में स्थित प्रज्ञ था। कैसे? आप देखिए 1916 में बेलगांव में एक स्टेट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पहली बार एक स्लोगन देते हैं। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट स्लोगन, दैट स्वराज्य इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल गेट। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। In 1929, in the Lahore Congress Conference, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी को रिपीट किया कि अब हमारा नारा है स्वराज्य, टोटल इंडिपेंडेंस। 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टेब्लिश करने की बात हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो उस समय सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि किन लोगों को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल करेंगे। तो वहां पर एक आइडिया ये आता है कि 1945 में ऑलरेडी सारे प्रोविंसेस में प्रोविंशियल इलेक्शंस हो चुके थे, और उन प्रोविंसेस में जो लोग हैं तो उन्हीं लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिया जाएगा। लेकिन 1945 में जिन लोगों को उन प्रोविंसेस में लिया गया था, मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी से थे। तो कांग्रेस पार्टी ने 1945 में कंडीशन डाल रखी थी कि इन प्रोविंसेस में वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने स्वराज्य मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। दैट वाज द कंडीशन ऑन द कैंडिडेचर ऑफ द कांग्रेस। ऐसे नहीं कि मैं और आपको या चलो आज टिकट के लिए दावेदारी करना मिल जाएगा, नो, दैट वाज द कंडीशन कि जिन्होंने स्वराज्य मूवमेंट में, जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, वो ही 1945 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने एक्टिव स्वराज मूवमेंट, इंडिपेंडेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया था, और यहीं से वो सारे लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसे लोगों से बनी थी जिन्होंने पिछले 50-60 सालों में उस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया था, जिनको पता था कि कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो, हमें हमारे लक्ष्य से भटकना नहीं है। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेचर ऐसे थी, उस समय लोग ऐसे थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और यही रीजन है स्थित प्रज्ञ लोग थे। पिछले 40-50-60 साल में वो उस फ्रीडम मूवमेंट में उनको कितनी लालच दिए गए, कितनी यातना दी गई, लेकिन वो डिगे नहीं, स्थित प्रज्ञ लोग थे, और वही लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे। और उन लोगों को फिर से एक बार, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग होता है, उस समय एक और चैलेंज आता है। आप लोग अगर पैरेलल 13 दिसंबर 1946 से हमारी जो फर्स्ट मीटिंग होती है, वहां से लेके 26 नवंबर 1949 तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना है, आया है, कमेंसमेंट हुआ है, इन 4 सालों में हिंदुस्तान ने अब तक की सबसे गंभीर घटनाएं देखी। 1948 के आसपास महात्मा गांधी का पॉलिटिकल एसिनेशन हो जाता है। 1947 ऑन 14 अगस्त 1947 जब पार्टीशन डिसाइड होता है, तो ऑलमोस्ट दिल्ली में 6 मिलियन रिफ्यूजीज वहां थे। कानपुर में उस समय एक बहुत बड़ी फ्लड आई थी जिसमें हजारों लोग बेघर हो चुके थे। रुपीज इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट रेट हाई हो रही थी, रुपीज डीवैल्यू हो रहा था। प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन प्रोसेस चालू है, पाकिस्तान हम पे हमला कर चुका, कबायली पठान पाकिस्तानी फोर्स की फॉर्म में हिंदुस्तान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर वाज द प्रॉब्लम, जम्मू एंड हैदराबाद वाज द प्रॉब्लम, जूनागढ़ वाज द प्रॉब्लम। इन बिटवीन ऑल दिस प्रॉब्लम we are writing our constitution.
इतनी विपरीत परिस्थितियों में आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हो, ये कौन कर सकता है? जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थित है, स्टेबल इंटेलिजेंसी वाला पर्सन ही ये काम कर सकता है। ये एक सबसे बड़ा कारण था, इसीलिए मैं इस असेंबली को एक रिवोल्यूशनरी असेंबली बोलता हूं, एक स्थित प्रज्ञ असेंबली थी। अदरवाइज इट वॉज नॉट पॉसिबल। जिस सेंट्रल हॉल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ के अपना काम कर रही थी, उस सेंट्रल हॉल से 2 किलोमीटर दूर दिल्ली गेट के पास हजारों लाखों रेफ्यूजीज बैठे थे, यहां पर राइट्स हो रहे थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 4th सेशन, 5th सेशन चल रहा था, तो 5th सेशन के समय राइट्स इतने पीक पर थे, दंगे इतने पीक पर थे, हिंदू मुस्लिम दंगे स्पेशली जो बात हुई, वो उस पीक पर थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पूरे दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स का रिक्वेस्ट ये था कि हमको स्पेशल पास दो ताकि हम यहां तक पहुंच सके, असेंबली सेंट्रल हॉल तक, और जाकर हम अपना काम कर सके। दैट वाज द डेडिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स।